in which we need to learn that how can we attempt. In these letters, the most special thing is when patient is coming from the same place and going back to the same place. So important punches of letter are, I'm writing this letter, three important punches. So I'm letter, first punch regarding one of your clients. So this is the first punch that you put. If he is coming from nursing home, then we will say patient rather than client. So this is the first punch that you will put to attain marks when the patient is coming from the same place and going back to the same place. Even for the doctors, so it would be like, I am writing this letter regarding one of your patients who was referred to us by you. अगर वो डॉक्टर ने रेफर किया था, who was referred to us by you for this and this purpose. अगर आपको by you नहीं भी लिखना तो भी कोई बात नहीं, who was referred to us for this and this purpose, तो आप उसको लिख सकते हो. Second punch of these important letters, once you are done with the main punch of this letter, the second important punch is when you will say now the patient is better, so she is being discharged back. So this is the second punch, discharged back to your center. So this is the second punch. And in these letters say, and you are advised to follow few instructions for her speedy recovery. You understand? So these are the very important punches that will go in every letters like these, even if it is referred by doctor or anybody. So you can say that, I'm writing this letter regarding one of your patients, one of your clients. If it is a retirement home, that means clients, because retirement home में patients नहीं रहते, clients रहते हैं, who was referred to us because of this and this reason. Now after treatment, patient is better. So she is being discharged back. And you are advised to follow few instructions या follow few precautions for her speedy recovery. Instructions is the better word क्योंकि उसके बाद की instructions होंगी, precautions तो तब होती हैं जब हमें ऐसा बताना हो कि इसको कोई बीमारी ना हो. Second punch, third punch of the letter is as you know. This is one of the most important punches. लेकिन इसको जब भी कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाता है वो ये भूल जाता है कि as you know से शुरू होने वाला सेंटेंस कभी सो के बिना खत्म नहीं हो सकता. कहने का मतलब, अगर मुझे कहना है as you know that Mrs. Brown is diabetic, तो ये सो के बिना खत्म नहीं हो सकता, चाहे जितनी मर्जी लंबी लाइन हो जाए. अगर आपने as you know वाली लाइन में सो नहीं लिखा तो वो गलती है. As you know that Mrs. Brown is diabetic, so diabetic diet was given to her ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन. तो ऐसे कहीं पे आप एक पॉइंट ढूंढ सकते हो कि आपने हॉस्पिटलाइजेशन में जो कोई ऐसा काम किया उसकी पुरानी डिजीज के लिए, तो ये सेकंड पंच. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कई बार इस पंच को जबरदस्ती यूज किया जाता है सेकंड पैराग्राफ में. ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन. लेकिन इस पंच को जान के और कभी कभी बहुत मजबूरी में सेकंड पैराग्राफ में डाला जाता है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं होता. बस आपको सेकंड पैराग्राफ में ये याद रखना होता है कि सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री ऐसे लेटर्स में नहीं लिखनी होती अनलेस ऐसी कोई बात बने कि एज यू नो दैट मिसेस ब्राउन इज डायबिटिक, या तो ऐसी कोई बात अपने आप बने, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करनी है. क्योंकि ये वाला पंच इसकी जगह सीधा आएगा, इसकी जगह सीधा आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन. ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वुड बी द सेकंड पैराग्राफ. इनमें से कोई भी एक पैराग्राफ बड़ा होगा, या तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वाला या डिस्चार्ज वाला, क्योंकि ओईटी का लेटर हमेशा इस तरीके से बैलेंस होता है कि 200 वर्ड्स तो बनेंगी. तो अब आता है ये एज यू नो वाला पंच कहाँ पे यूज करेंगे, या आप वहां पे यूज कर सकते हो. एज यू नो दैट मिसेस ब्राउन इज डायबिटिक, सो डायबिटिक डाइट शुड बी कंटिन्यूड. तो ये आप डिस्चार्ज में भी यूज कर सकते हो इस लाइन को. तुम डोंट मेक इट अ कंपल्शन एंड जबरदस्ती कि आपको ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बनानी. ये सबसे बड़ी गलती है कि ऐसा मजबूरी में समझा जाता है कि सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन यही बनाओ. आप इसकी जगह ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन भी बना सकते हो, बट हाँ, इसको यूज करना है तो कहीं पे ऐसे यूज कर सकते हो एज यू नो दैट, एज यू नो मिसेस ब्राउन इज डायबिटिक. अगर दैट लगाना है तो शायद कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सिंपल एज यू नो
मिसेस ब्राउन इज डायबिटिक, सो डायबिटिक डाइट शुड बी कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब ये है कि आप पहले भी देते होंगे तो आपको आगे भी करनी है, सो दैट ही कैन हैव स्पीडी रिकवरी, ऐसा कुछ। तो आप इसको यूज कर सकते हो, सो दैट शी कैन हैव स्पीडी रिकवरी। ठीक है, नहीं तो ऐसे कह सकते हैं एज यू नो मिसेस ब्राउन इज डायबिटिक, सो डायबिटिक डाइट शुड बी कंटिन्यूड सो दैट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड, ऐसा कुछ लिखना चाहते हो अगर आप मिनिमाइज कर सके। सो दिस इज अप टू योर इंग्लिश। सो आई हैव टोल्ड द बेस्ट आई। तो आपको ये 3-4 पंचेस हमेशा डिस्चार्ज लेटर और डिस्चार्ज बैक वाले लेटर के, तो मतलब फर्स्ट पंच वन ऑफ योर क्लाइंट्स, सेकंड पंच बैकवर्ड, थर्ड पंच यू आर एडवाइज टू फॉलो। इसमें कभी भी हैंड्स का यूज नहीं करना, कभी भी नहीं करना हैंड्स का यूज। सो एंड यू आर एडवाइज टू फॉलो प्रिकॉशंस। सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में नो सोशल हिस्ट्री नो मेडिकल हिस्ट्री अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है तो अगर आपने ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ बढ़िया काम किया है तो आप कह सकते हो एज यू नो मिसेस ब्राउन is diabetic, so during hospitalization diabetic diet was offered and you know infection was taken care of। ऐसे ऐसे आप पॉइंट्स को बेटर कर सकते हो। एंड देन इन द लास्ट इन द डिस्चार्ज प्लान, ये तब अगर शुरू में पंच नहीं मार पाए तो ये पंच आप लास्ट में रख सकते हो, या डिस्चार्ज प्लान के शुरू में या डिस्चार्ज प्लान के एंड में, एज पर द कन्वीनियंस। एज यू नो दैट मिसेस ब्राउन इज डायबिटिक, सो मतलब एज वाला सेंटेंस कभी सो के बिना खत्म नहीं होता। कहने का मतलब जैसे मैं कहूं एज शी इज सिक, मैं उसको कहूं जैसे कि वो बीमार है तो क्या, सो शी कैनॉट कम टू स्कूल, मतलब सो के बिना ये कभी खत्म नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एज वाला सेंटेंस सो के बिना नहीं चलता। एज और सो इज अ कनेक्शन, आर कॉल्ड कनेक्टर्स। So is it okay for everyone? Any doubt to anyone that you might have to ask regarding this thing? Anything? Nah, is it okay? Is it okay for everyone?